Good morning. I hope I'm audible. Am I audible or not? I hope I am audible now. Yes, sir. Okay, 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 okay. Great. So let's start with iontophoresis. Okay, तो कल हमने डिस्कस किया था तो वी वर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट करंट ना वी वर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट टाइप ऑफ करंट एंड देन वी टॉक अबाउट डिफरेंट मॉडिफिकेशंस ऑफ डायरेक्ट करंट ना like we talked about the DC in different types of surges and then उसके बाद अलावा हमने बात करी थी about the galvanic and the Faradic current है ना and we discussed that we use the Faradic in case of innervation and in case of denervation we use the galvanic current because of the difference of their time duration of each pulse and the difference in frequency and also we discussed कि time duration and frequency का difference होने से किस तरह से like how the current acts differently and किस तरह से वो different functions carry out करने के लिए help करता है. Okay. Now talking about another usage of the direct current that is the iontophoresis. तो कल हमने iontophoresis discuss किया था that by the use of electric current if we try to administer certain drugs है ना or certain you can say medications or maybe certain ions into the skin surface that is called as iontophoresis है ना and दूसरा same term था हमारा phonophorosis जहाँ पे we were trying to administer the ions by the use of कोई बताएगा कैसे in phonophorosis. Ultrasound. Yeah, by the use of US modality है ना and by the use of ultrasound and then we were calling it as phonophoresis लेकिन यहाँ पे we can call it as iontophoresis where we are trying to administer the ions into the skin surface or you can say into the skin by the use of electric current, specifically the constant direct current na, that is applied. So in this case the thing is that you need to know about first of all कि there are certain you can say ions which are like here we can see which are negative ions है ना कुछ हमारे negative ions है अगर से हम क्लोरीन की बात करते हैं क्लोरीन इज अ नेगेटिव आयन है ना likewise sodium is a positive ion. Likewise we can see we have got certain ions here. Some of those are positive and some of those are सर negative. वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है. वॉइस ब्रेक हो रही है जस्ट गिव मी अ सेकंड. जस्ट अ सेकंड. अब बेटर है. इससे ओके ठीक है. स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो जस्ट लेट मी नो ठीक है मैं एक बार लीव करके वापस ज्वाइन कर लूँगा but मैंने नेटवर्क अपना चेंज कर लिया. Okay, so I was saying that there are certain ions which are negative in nature, like there are certain negative ions and certain positive ions. Like we can say there's this sodium ion which is positive in nature, and then we have got the chlorine ion which is negative in nature. Likewise, we can talk about certain negative and certain positive ions. And the thing is that you need to remember this that negative ions जो है negative ions are placed on the cathode, that is the active electrode. Just remember this thing, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है that again हम जो cathode and anode की जो हमने बात करी थी we can see कि cathode we are calling the cathode as the positive electrode, or you can say that the active electrode is being called as the cathode, and the you can say the passive electrode that is being called as the anode. ठीक है. एंड जस्ट रिमेंबर दिस कि नेगेटिव आयन कोई भी अगर नेगेटिव आयन अगर हमारे पास होता है वी नीड टू प्लेस इट ऑन द एक्टिव इलेक्ट्रोड, और यू कैन से वी नीड टू प्लेस इट ऑन द कैथोड. एंड इसके अलावा इफ वी हैव गॉट अ पॉजिटिव आयन इन दैट केस वी नीड टू प्लेस द पैसिव इलेक्ट्रोड, और यू कैन से वी नीड टू प्लेस द एनोड ऑन दैट पर्टिकुलर आयन. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना
कोई भी अगर हम आयन, कोई भी अगर हम मेडिकेशन या कोई भी ड्रग अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो इन दैट केस मतलब जो जो हम चाहते हैं, विच वी वांट टू गेट पेनिट्रेटेड थ्रू द स्किन सरफेस, इन दैट केस वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट कि वो जो आयन है, इज दैट नेगेटिव इन नेचर और इज इट पॉजिटिव इन नेचर, एंड देन वी कैन फिगर आउट if it is negative, in that case we need to place it under the active electrode, and if it is positive, in that case we need to place it under anode, ठीक है, or we can say under the this thing, the passive electrode, okay. ये this is important, ठीक है, it can come in even MCQ form, ठीक है. Now the thing is that okay, we go for the constant direct current, and the thing is that you need to remember certain you can say ions, the name of certain ions, like let's say we have got this hydrocortisone, no, hydro sorry, in case of hyperhidrosis के केस में, can anyone tell me what is hyperhidrosis, and दूसरा opposite होता है anhydrosis. Excessive. Yeah, excessive sweating na, in case of excessive sweating, the most common example of iontophoresis, like the condition can be hyperhidrosis, and इसका opposite there can be anhydrosis, जहाँ पे there is no sweating. हमने anhydrosis तो हम एक जगह न्यूरो में पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था कि there was this I don't remember the condition, but वहाँ पे जो upper motor neurons थे, and specifically there were certain neurons, मतलब cortico bulbar tract तक जो थे, those were getting affected. I think Horner syndrome में, we can say Horner syndrome में हमें anhydrosis देखने को मिल सकता है, because again we can say कि facial muscles जो है those are like going into paralyzed state, and apart from that we can see कि we won't find any kind of this thing, any kind of sweating or something like that, ठीक है, so that is called as anhydrosis, okay. So but okay, so here we can see in case of hyperhidrosis, excessive swelling, that is a common condition. So in that condition we can go for iontophoresis. So in this thing we can see we have got this anticholinergic compound used in distilled water, that is recommended, ठीक है. Just remember this कि we have got this particular ion that is called as glycopyrovium bromide, that is a positive ion. Can anyone tell me, अच्छा लिखा ही हुआ है यहाँ पे कि since it is a positive ion, it is supposed to be placed at the anode, or you can say it is supposed to be placed under the passive electrode, ठीक है. The name of the ion, that is glycopyrovium bromide, and that is being used. तो जो एग्जाम्पल एटलीस्ट हमारे जैसे नंदा में या फिर क्लेटन्स में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एटलीस्ट वी नीड टू रिमेंबर दैट. अगर हमें उतना भी याद है, आई थिंक एग्जाम में उससे ज़्यादा तो नहीं पूछेंगे, but like we can remember it that glycopyrovium bromide, that is given in case of hyperhidrosis, and since it is a positive ion, we need to place it under anode, or you can say the passive electrode. Likewise we can go for acetate, we can use another ion that is called as acetate, that can be used in case of calcific deposits. Let's say there is any calcific deposit or something at a particular region, है ना, या फिर let's say we can say there is any any calcific deposit, so in that case we need to go for acetate. Likewise we have got this dexamethasone, hydroxycortisone, that can again be used as in case of like as anti-inflammatory mediators na, so again we can place them under the electrode so as to use them as anti-inflammatory. And then we have got this chloride ion that can be used to stretch the adhesion scar. Let's say there is a scar that is present on the skin surface, and that has produced that adhesion के मतलब कि ये है कि मतलब now we can say कि जो skin का जो elastic property है, that is being lost, so in that case we need to stretch it properly. So in that case we can go for this chloride ion, and that can be used to stretch that adhesion scar and to break it. So again just remember these two name of these 3-4 ions जो कि हमारा chloride ion है in case of adhesion scar, dexamethasone and hydroxycortisone as anti-inflammatory, and then we have got acetate in case of calcific deposits, and the glycopyrovium bromide, that is used in case of hyperhidrosis, ठीक है. Just remember the name of these 3-4 ions. I think that is sufficient. And apart from that, if you we can talk about the side effects as well, like anticholinergic compounds have atropine like effects like drying of mouth. So for that we need to figure out कि उस person का, तभी हम assessment करते हैं, and we need to figure out कि उस person का drug history क्या है,
पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है ना? तो बिकॉज ऑफ दैट, लाइक फ्रॉम दैट वी कैन फिगर आउट कि वो लाइक इफ दैट पर्टिकुलर आयन is that feasible for that individual or not, and then we can apply it, and then we can decide कि वो indicated है कि contraindicated है. ओके, एक मैं ये चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था. मेरे पास एक मैंने लेट मी नो, मैंने ये शेयर किया है क्या? ये असेसमेंट फॉर्म मैंने शेयर किया है क्या? आई थिंक मैंने जो ऑर्थो फॉर्म, ऑर्थो का, हाँ, ऑर्थो का जो पीपीटी है उसमें आपको एक जगह कहीं ना कहीं मिल जाएगा ये. अगर आपने देखा होगा जो ऑर्थो की जो पीपीटी जो शेयर करी है ना मैंने आपसे सबसे, जब आपने एनरोल किया था उस टाइम पे उस वाली पीपीटी में आपको ये मिल जाएगा ये वाला. स्टिल मैं ये सिर्फ ये जो असेसमेंट फॉर्म है ये भी मैं एक बार शेयर कर दूंगा. ये मैंने डिस्कस किया था कि नहीं किया था? नो सर. नहीं किया था ना डिस्कस इसमें. ओके, ये भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ बिकॉज देर आर सर्टेन थिंग्स. जैसे देखो, लाइक कैन एनीवन टेल मी कि हम चीफ कंप्लेन में क्या लिखते होंगे? मैं एक दो चीज़ यहाँ पे बस बात बताना चाहता हूँ, उसके बाद इसको हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली. कोई बताएगा मेरे को चीफ कंप्लेन में हम क्या लिखते होंगे? आई होप आप सबने यूज़ मतलब किया होगा. पेशेंट जो बताता है, जो कंप्लेन लेके आते हैं, एग्जैक्टली है ना? हाँ, जो पेशेंट की लैंग्वेज में रहता है, ताकि सो दैट कि जब इस फॉर्म को हम बाद में पढ़े, या फिर लेट्स से ये फॉर्म अगर लेट्स से मैंने फिल किया है और उसके बाद आप कुछ टाइम के बाद वो पेशेंट अगर आपको मैं हैंड ओवर कर देता हूँ, तो आप ये असेसमेंट फॉर्म देख के आपको समझ आ जाना चाहिए कि उस पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या चल रहा है, कंडीशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो सब चीज़ें. तो इन डैट केस उस पेशेंट ने पेन किस तरह से प्रेजेंट किया, वो तो चीज़ होती है उसकी लैंग्वेज में. दैट इज़ रिटन इन द चीफ कंप्लेंट ना. लाइकवाइज हमें कन्फ्यूजन रहता है कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस HOPI इसमें लिखना क्या है ना? तो मोस्टली मतलब ये ऐसे हम इसको बोल देते हैं कि जो सेम जो चीफ कंप्लेंट है उसी को लाइक हमें ओपन अप करके मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज़ करके इसको प्रॉपरली हमें एलैबोरेट करना है. लेकिन इसके लिए आई थिंक द ईजिएस्ट वे फॉर दिस इज़, इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, WHIP विप, दैट इज़ व्हेन, हाउ, इंटरवेंशन टिल डेट एंड द पैटर्न ऑफ पेन. तो अगर ये 4 क्वेश्चन अगर आप पूछते हो, आप इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू लाइक आस्क देम क्वेश्चन फॉर HOPI, है ना? कि पेन का मतलब कितना टाइम हो गया पेन को हुए, किस तरह से पेन अराइव हुआ, कोई फॉल हुआ था या फिर कोई कंडीशन हुई थी या कुछ, है ना? देन उसके बाद इंटरवेंशन टिल डेट, अभी तक कहीं और पे आपने कोई इंटरवेंशन या कहीं और कोई मेडिकल अटेंशन कोई इसको इस कंडीशन को मिला है कि नहीं. एंड देन द पैटर्न ऑफ पेन, कि वो पेन किस टाइम पे ज़्यादा रहता है, किस टाइम पे, एंड उसके बाद बॉडी में किस पैटर्न में वो पेन, लाइक इज इट रेडिएटिंग और समथिंग लाइक दैट. तो वो लाइक वी कैन आस्क दैट. तो लाइकवाइज वी कैन टॉक अबाउट दिस. ऐसे ही जैसे हमारा पेन हिस्ट्री रहता है, तो पेन हिस्ट्री में वी कैन आस्क देम फॉर द सिन फैक्टर. कोई मेरे को बता सकता है सिन फैक्टर क्या होता है? आपने नाम सुना है? SIN, सिन फैक्टर. ओके, सिन. इरिटेबिलिटी. या एग्जैक्टली. इरिटेबिलिटी और ऐसा कुछ. हाँ, सीवियरिटी, इरिटेबिलिटी एंड द नेचर ऑफ पेन. SIN, ठीक है? सिन फैक्टर्स. तो यू नीड टू रिमेंबर दिस. सिन मीन्स सीवियरिटी, इरिटेबिलिटी एंड नेचर. तो सीवियरिटी मतलब कि आप पेन मतलब आपको कितना पेन सीवियर है, उसके लिए आप कौन सा स्केल यूज़ करते हो? पेन कितना सीवियर है, हाँ, वास्ट स्केल. ओके, ठीक है. तो जिस स्केल पे आप पूछते हो पेशेंट से कि 1 से 10 तक, आपने पूछा होगा 1 से 10 तक कितना कितना पेन है, तो उस स्केल को हम क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू थिंक, उस स्केल को हम क्या बोलते होंगे? ये एक बहुत कॉमन एरर है. हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन चलता है इंडिया में ये कॉमन एरर. आई जस्ट वांट टू नो, आपने यूज़ किया होगा जब आप पूछते होगे आउट ऑफ 10 आपका पेन कितना है, या ऐसे कुछ, कितना सीवियरिटी पेन की पूछने के लिए, उस स्केल को आप क्या बोलते हो कॉमनली? आई जस्ट वांट टू नो. वास्ट स्केल उसको न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल. हाँ शिवानी, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल. तो NPRS स्केल जो होता है, जो हम पूछते हैं ना, आउट ऑफ 10 कितना पेन है, दैट इज एक्चुअली द न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल, नॉट द वास्ट स्केल. वास्ट स्केल इज एक्चुअली समथिंग एल्स. मतलब वास्ट स्केल में कभी नंबर्स यूज़ नहीं होते हैं. वास्ट स्केल में एक्चुअली हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग एक 10 सेंटीमीटर की लाइन होती है, एंड देन 10 सेंटीमीटर की लाइन में से हम पर्सन का फेशियल एक्सप्रेशन एंड ऑल दैट, एंड उसके अकॉर्डिंग हम उसमें फिगर आउट करते हैं कि किस जगह पे हम पॉइंट आउट करें या फिर एरो लगाए कि जहाँ पे मतलब उस स्केल के अकॉर्डिंग किस एरो, मतलब कितना लेवल ऑफ पेन है, उसके अकॉर्डिंग हम वो कर सकते हैं. लेकिन जो हम नंबरिंग यूज़ करते हैं, नंबरिंग इज़ नॉट इन केस ऑफ
वास्ट स्केल, दैट इज़ इन केस ऑफ न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल। ये बहुत ही कॉमन एरर है जो कि हर कोई कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट अगर आप मैगी में भी देखोगे यू विल फाइंड आउट कि न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल जो है दैट इज़ एक्चुअली द स्केल जो कि आउट ऑफ 10 जो हम पूछते हैं पेशेंट से, वो वाला स्केल होता है, दैट इज़ नॉट द वास्ट स्केल। ठीक है, ओके। तो खैर ये मैं शेयर कर दूंगा क्लास के बाद में एंड विल फिगर आउट। ऐसा करते हैं जो ये मैं कल भी सोच रहा था कि ये मतलब क्लासेस ख़त्म होने के बाद में एक क्लास रख लेते हैं, उसमें लाइक आई विल गिव यू सम टाइम, आप अपने टॉपिक्स या वो सब आप थोड़ा बहुत या डाउट्स या क्वेश्चन है जो भी है आप एक बार आप उनको पाइल अप कर लो एंड उसके बाद में हम उनको उसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बट उस क्लास में थोड़ा सा ऐसे रखेंगे, मतलब ऐसा मत करना कि सर ये पूरा शोल्डर बायोमैकेनिक्स समझा दो, बिकॉज उसमें भी टाइम लग जाएगा। मतलब हम प्रिसाइसली एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है या फिर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन या जैसे ये असेसमेंट फॉर्म हो गया, ये सब हम डिस्कस कर सकते हैं मे बी अगली मतलब 2 घंटे में ऐसे कुछ, तो वो उससे हम पूरा वो कर लेंगे। बट हाँ, अगर आपको स्टिल कोई डाउट रहता है किसी पूरे कंसेप्ट में, कोई चीज़ है जो उस टाइम हम कवर नहीं कर सकते, तो वो फिर हम फिगर आउट कर लेंगे उसके लिए कि कैसे करना है। लेकिन हाँ, तो इसके लिए एक क्लास रख लेंगे हम प्रॉपर, पूरा ओवर होने के बाद में एक क्लास हम प्रॉपर रख लेंगे इसको समराइज़ करने के लिए, सारी चीज़ें जो डाउट्स है जो रहेगा वो हम समराइज़ कर लेंगे उस क्लास में। ठीक है, ओके। ठीक है, तो आई होप टिल नाउ वी आर डन विद आइंटोफोरेसिस। अब किस किसने आइंटोफोरेसिस यूज़ किया है, किस किसने किया है आइंटोफोरेसिस अप्लाई, या फिर आपने देखा हुआ आइंटोफोरेसिस होता हुआ आपको? आई जस्ट वांट टू नो किस किस की यूनिवर्सिटी में आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आइंटोफोरेसिस करके दिखाया था? नो सर। राम, आपको दिखाया था आपकी यूनिवर्सिटी में? नो सर। नहीं, किसी की यूनिवर्सिटी में दिखाया नहीं आइंटोफोरेसिस करते हुए? दैट्स स्ट्रेंज। नहीं सर। तो तभी हमारे इलेक्ट्रोथेरेपी का इतना इतना कम स्कोप है। हम लोग एक तो चीज़ है कि हम लोग इलेक्ट्रोथेरेपी की वैसे ही बहुत बुराई करते रहते हैं कि नहीं मैनुअल थेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी अपने आप में एक पूरा वास्ट एक फील्ड है एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हम अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं एंड बट हम उसको भी बहुत एक हमने लिमिटेड स्कोप तक रखा हुआ है। सिर्फ हम 10 IFT SWD बस मैक्सिमम हम ये यूज़ कर रहे हैं कि यूएस हम और यूज़ कर रहे हैं बस, लेकिन वो यूएस भी हम प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर रहे। तो खैर अब ये होता कि बेटर होता कि अगर हम कहीं प्रैक्टिकल कहीं पे अगर कर रहे होते तो इन डैट केस हम एक बार करके देख लेते आइंटोफोरेसिस। बट अभी ऑनलाइन तो प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, बट हाँ ठीक है, बट यू मस्ट ट्राई इट। कभी ना कभी आप इसको ट्राई करना कि आइंटोफोरेसिस ट्राई करना एंड ऑल दैट। तो जस्ट फाइंड आउट कि इसका इफेक्ट किस तरह से रहता है एंड ऑल दैट। तो आइंटोफोरेसिस इट इज़ अ ग्रेट वे टू लाइक टैकल सम ऑफ द कंडीशंस। ठीक है, okay. And the indications, contraindications can be like these congestions and all that. And इसके अलावा you need to figure out, तभी मैंने ड्रग हिस्ट्री वगैरह की बात करी कि पर्सन का पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री एंड वो सब क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग वी कैन फिगर आउट कि कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेशन उस पेशेंट में रहेगा, उस कंडीशन उस पर्सन में रहेगा। ठीक है, एंड प्रिकॉशंस विल बी ऑफ कोर्स कोई मेडिकल कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो उस केस में वी नीड टू रिमेंबर द फिंगर रिंग एंड ऑल दैट, दो ज्वेलरीज है एंड वो सब चीज़ें, एंड रिमेन स्टिल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड करेक्ट थिकनेस ऑफ पैड्स। हमने ये बात करी थी ना कि कितने लेयर ऑफ लिंट रहता है ओवर द इलेक्ट्रोड सो एज टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक बर्न। 8 layers ना, we need to go for at least 8 layers of, है ना, 8 layers of lint layers at least on the electrode, so in order to prevent any kind of electrolytic burn, है ना। अब आज के बाद में आप जब भी टर्म यूज़ करोगे burn because of electrodes, तो you will be using the term electrolytic burn। कभी भी सिर्फ बर्न, क्योंकि बर्न का तो कोई भी रीज़न हो सकता है ना, लेकिन पेशेंट में अगर हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक बर्न हुआ, इट मीन्स कि हाँ कोई ना कोई मोडालिटी या फिर कोई इलेक्ट्रिक उसकी वजह से कोई ना कोई बर्न हुआ है उस पेशेंट में। ओके, now coming up to okay, stages of denervation में फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम न्यूरो में देख चुके हैं वैसे, लेकिन स्टिल वी कैन फिगर आउट। लेट्स से मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट द पेरिफेरल नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्व्स में लेट्स से किसी एक लेवल पे अगर कोई इंजरी हो जाती है तो इन दैट केस विल सी कि उस पर्टिकुलर लेवल के नीचे लेट्स से अगर मेरा इस लेवल पे अगर नर्व इंजरी हुई है हमारे लाइक इट्स रियली फनी कि मतलब एक मेरा इंटर्नशिप था एंड उस टाइम पे एक फाइनल ईयर स्टूडेंट था एंड उसका ब्रेकअप वगैरह हो गया एंड वो सब, एंड ही ट्राई टू लाइक कट
किसी ग्लास से या कुछ करने से एंड वो कट भी अच्छे से नहीं हुआ उससे, एंड इन दैट केस ही severed his ulnar nerve, and ulnar nerve severe होने की वजह से like he even now also he is suffering with that ulnar nerve deformity and all that. And in that case starting में जब ulnar nerve deform हुई या फिर severed हुई, injured हुई, तो in that case द कंडीशन स्टार्टेड हेयर है ना, एंड कुछ टाइम के बाद में ही फिगर आउट की पूरी फिंगर जो है वो अफेक्ट हो गई है. तो इट मीन्स दैट इज कॉल्ड एज वॉलेरियन डीजनरेशन, मतलब कि पहले डीजनरेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, एंड देन उसके बाद में आफ्टर सम टाइम मे बी मतलब अगले 4 days 5 days 7 days मतलब मैक्सिमम 14 days लगता है, ठीक है. इट टेक्स मैक्सिमम 14 days टू कंप्लीट द वॉलेरियन डीजनरेशन. तो वॉलेरियन डीजनरेशन कंप्लीट हुआ, एंड देन बिल्कुल लास्ट तक आके पूरा का पूरा उसका जो जितना अल्नर नर्व सप्लाई करता है उतना उसका इफेक्ट हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म द मूवमेंट्स जो कि हमारा अल्नर नर्व परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. तो दैट इज कॉल्ड एज वॉलेरियन डीजनरेशन. तो इट मीन्स एंड सेम चीज़ की हम बात कर सकते हैं. लेट्स से हमारे पास कोई और इंजरी, इवन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी अगर हम बात करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी वी विल सी कि स्टार्टिंग में उस पर्सन का मतलब स्लाइट लेवल ऑफ मसल पैरालिसिस होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वी विल सी कि मसल पैरालिसिस जो है इट इंक्रीजेस, है ना, वो इंक्रीज करता है, एंड देन उसके बाद वो डिस्टल स्ट्रक्चर्स की तरफ जाता है, एंड देन इवेंचुअली वी सी कि हमारी पेरिफेरल इवन टोज एंड हैंड्स डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वहाँ तक हमारी जो लेवल ऑफ पैरालिसिस है वो पहुँच जाता है. लेकिन स्टार्टिंग में इट इज़ एट द बिगिनिंग लेवल, तो वहाँ पे वी कैन सी कि स्टिल हमारे डिस्टल स्ट्रक्चर्स है वो स्टिल काम कर रहे हैं इवन आफ्टर that nerve getting severed. लेकिन after some time at max up till 14 days after that we will see कि हमारा Wallerian degeneration complete हो चुका है, and then we will see कि now it has got completely like it is affected. And likewise we can go for we can see कि हमारी जो nerve है एक बार डीजनरेट हो गई है तो उसके बाद में एवरी नर्व हैज़ गॉट दिस पोटेंशियल टू रीजनरेट, है ना, ये हमें पता है. हर नर्व का रीजनरेशन का वो होता है एंड पोटेंशियल होता है, एंड we can accelerate that rate of regeneration of nerve by use of these electrotherapy modalities. तभी हम electrical stimulation use करते हैं. electrical stimulation से basically the nerves get stimulated, and because of that we can see कि slightly at least थोड़ा सा हम speeden up कर सकते हैं अपना rate of regeneration of nerve को. तो एक तो हम वो कर सकते हैं, एंड हाँ ठीक है. ओके, तो यहाँ पे एक टर्म मैं बोलना चाहता हूँ. हाँ, दैट थिंग इज कॉल्ड एज मोटर मार्च. एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज मोटर मार्च, MOTOR, मोटर मार्च. मोटर मार्च मीन्स बेसिकली मोटर नर्व, और यू कैन से द नर्व जो है जो नर्व अफेक्ट हो गई है दैट नर्व इज मार्चिंग, है ना. हमारी एक नर्व यहाँ पे अफेक्ट हो गई, अब नर्व रीजनरेट कर रही है अपने आप को, तो दैट इज कॉल्ड एज मोटर. कहीं पे अगर टर्म आता है मोटर मार्च, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि मोटर मार्च मीन्स नाउ द नर्व इज रीजनरेटिंग, एंड नर्व जो है वो मार्च कर रही है, एंड वापस वो अपना रीजनरेट हो गया, पूरा का पूरा वापस अपना नॉर्मल हो जाएगा. लेकिन ऑफ कोर्स उसका रेट जो है दैट इज लाइक वेरी स्लो, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से कि इट विल टेक फॉर श्योर, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू रीजनरेट, है ना, पूरा का पूरा वापस उसको नॉर्मल होने में. तो दैट इज कॉल्ड एज मोटर मार्च. एंड किसी को आइडिया इसका रेट क्या रहता है कि क्या किस रेट पे हमारी नर्व रीजनरेट होती है? If I'm not wrong, it is 0.01 mm per day, but still just एक बार इसको आप कंफर्म करो एक बार कि what is the rate of regeneration of nerve per day. I think 0.1 या 0.01 mm per day ऐसा कुछ रहता है, बट स्टिल जस्ट एक बार इसको आप क्रॉस चेक करो एक बार, ठीक है. मैं एक बार क्लास के बाद क्रॉस चेक करके आपको एग्जैक्ट नंबर बता दूंगा. इट इज़ आइदर 0.1 और 0.01 ऐसा कुछ है, ठीक है. बट आई होप सबको समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ. आई होप आई एम क्लियर. ठीक है, आप लोग सुन रहे हो? Yes, मैं आप sir. सुन रहे हो? बाकी सब माधुरा, वमाक्षी, ओके Yes, sir. ओके ओके ग्रेट. ठीक है, तो ठीक है, तो वी कैन सी इट टेक्स 14 days, एंड आफ्टर सम टाइम बाय द एंड ऑफ द वॉलेरियन डीजनरेशन वी कैन सी कि हमारा कंप्लीट डीजनरेशन इज एविडेंट. ओके, सो दैट कैन बी सीन. Okay, that is basically the regeneration. Okay, now coming up to the SD curve. Can anyone tell me the full form of SD curve? The full form of SD curve. Strength duration curve. Strength duration curve. Okay, it means कि here we are trying to plot
ग्राफ है ना, जिसमें एक साइड पे हमारा स्ट्रेंथ होगा एंड दूसरे साइड पे हमारा ड्यूरेशन। स्ट्रेंथ मीन्स इंटेंसिटी, कि कितना इंटेंसिटी ऑफ करंट हम यूज़ कर रहे हैं, एंड दूसरे साइड पे हमारा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब कि हमारा पल्स ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं। तो वी कैन सी मेनली, अगर अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है, और हमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है दैट डिपेंड्स अपॉन द थिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर यूजिंग दिस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर ना। तो नर्व स्टिमुलेटर हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर हम यूज़ करते हैं। तो इन फॉर एस टू प्लॉट द एस डी कर्व, एंड इन दैट केस वी हैव गॉट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलेटर्स। आइदर हमारे पास या तो कांस्टेंट वोल्टेज स्टिमुलेटर होता है, या फिर हमारे पास कांस्टेंट करंट स्टिमुलेटर होता है। वी कैन हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलेटर्स। आइदर वी कैन हैव अ कांस्टेंट करंट स्टिमुलेटर, और वी कैन हैव अ कांस्टेंट वोल्टेज स्टिमुलेटर। तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन फिगर आउट कि हमारा दो अलग अलग टाइप के, मतलब कुछ ऐसे ऐसे ग्राफ देखने को मिलेंगे, लेकिन स्टिल वी कैन सी कि बस वोल्टेज की अगर हम बात करें तो एट अ वेरी लो लेवल ऑफ वोल्टेज हम वी कैन सी कि हमें ये देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इवेंचुअली वी कैन सी कि हमारा जो कर्व है वो समथिंग लाइक दिस है। देखो वो कर्व में कोई मतलब वो नहीं है, कर्व हमारा सिमिलर रहेगा दोनों के केस में। नाउ द थिंग इज कि ये ग्राफ इस तरह का बन कैसे रहा है। तो वी कैन सी कि जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, वी हैव गॉट दीज ड्यूरेशन, या फिर वी कैन से पल्स ड्यूरेशन, एंड वाई एक्सिस पे अगर हम देखते हैं वी हैव गॉट दिस क्या कहते हैं, इंटेंसिटी, करंट इंटेंसिटी। तो इसको हाउ वी कैन प्लॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्लेस द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द स्टिमुलेटर ऑन द रिस्पेक्टिव मसल विच वी वांट टू टेस्ट, है ना। एंड इसके बाद में द थिंग इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल उस स्टिमुलेटर का हम पल्स ड्यूरेशन जो है उसको, अब आपने अगर देखा होगा स्टिमुलेटर, तो आपने देखा होगा उसमें उसमें अलग अलग स्टेप्स रहते हैं, मतलब आप उसमें उसमें नॉब रहता है, एंड नॉब के अलग अलग स्टेप्स रहते हैं ना, इस तरह से 0.01, देन वी हैव गॉट 0.1, देन वी हैव गॉट 0.03, देन 0 पॉइंट, ऐसे ऐसे करके उसमें उसमें रहते हैं। आप सबने नोटिस किया है वो? Yes, sir. ठीक है, मैं एक बार दिखा भी, अगर मुझे कोई इमेज मिलती है तो। इलेक्ट्रिक हेयर वी कैन सी, अगर अगर इसमें कुछ दिख रहा हो, मैं देखो यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं, दिस इज़ नॉट, नहीं हमें इतना क्लियरली विजिबल नहीं है, बट अगर मुझे कोई इमेज मिलती है हमको सेंड करता हूँ। बट अगर आई होप आप सबने नोटिस किया होगा कि उसमें पल्स ड्यूरेशन के लिए जो हमारे पास नॉब रहता है, ठीक है, तो ओके, तो उसमें उसमें हमारे पास इस तरह से मतलब हमारे पास रहता है कि उसमें 0.01, देन 0.03, देन 0.1, देन 0.3, देन उसके बाद 1, देन 3, देन 1, देन 10, देन 30, है ना। इस तरह से हमारे पास उसमें उसमें पॉइंट्स रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम वी विल ब्रिंग दैट पल्स ड्यूरेशन टू 0.03। 0.03 पे हम प्लेस करेंगे पल्स ड्यूरेशन को, एंड उसके बाद में वी विल ट्राई टू इंक्रीज द इंटेंसिटी। तो वी विल सी कि इंटेंसिटी हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करनी पड़ रही है, ऑलमोस्ट वी कैन सी ऑलमोस्ट 100 मिली एम्पेयर की इंटेंसिटी पे हमें आना पड़ा, तब जाके हमें मिनिमल विजिबल या पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। कैन एनीवन टेल मी कि दैट मिनिमल पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज रियो बेस, ठीक है। रियो बेस इज अ टर्म दैट इज यूज्ड is in like when we say कि एक minimum amount of current that is required to get a minimum amount of palpable contraction। तो even though let's say अगर बाइसेप पे वो प्लेसमेंट हुआ है उसका इलेक्ट्रोड का, एंड अगर वहाँ पे रियो बेस देखने को मिल रहा है, आई नीड टू प्लेस माई फिंगर ऑन द बाइसेप टेंडन, तो मे बी हो सकता है मुझे विजिबल कॉन्ट्रैक्शन ना मिल रहा हो, लेकिन एटलीस्ट बाइसेप का जो टेंडन है वो थोड़ा सा पॉप अप करेगा, है ना। एंड इन दैट केस आई कैन से कि हाँ, मतलब इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इट इज़ नॉट विजिबल बट इट इज़ पैल्पेबल। तो मिनिमल अमाउंट ऑफ पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन अगर हमें देखने को मिलता है विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड एज रियो बेस। मतलब रियो बेस, बेस मीन्स द बेसिक अमाउंट ऑफ करंट, है ना, दैट इज कॉल्ड एज रियो बेस। तो वी कैन से कि द रियो बेस फॉर मिनिमल पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मसल जिसको हम चेक कर रहे हैं एट 0.01
मिली सेकेंड ऑफ पल्स ड्यूरेशन, दैट इज़ 100, तो इट मीन्स 100 मिली एम्पेयर का हमें करंट इंटेंसिटी देनी पड़ रही है, तब हमें मिल रहा है। उसके बाद में वी विल सी कि जितना हम पल्स ड्यूरेशन इंक्रीज करते हैं उतना हमें कम अमाउंट ऑफ मिली एम्पेयर ऑफ करंट या इंटेंसिटी हमें देना पड़ता है, ताकि हमें एक मिनिमल पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन मिले। एंड आफ्टर सम टाइम वी विल सी कि जब हम एटलीस्ट 1 और यू कैन से 3 मिली सेकेंड्स ऑफ पल्स ड्यूरेशन पे पहुंच जाते हैं, आफ्टर दैट इट बिकम्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। उसके बाद ये एक्सिस के पैरेलल, उसके बाद इट डजेंट मैटर कि हम कितना भी पल्स ड्यूरेशन को बढ़ाते जाए, हमारा सिमिलर, लेट्स से यहाँ पे वी कैन से ऑलमोस्ट 10 मिली एम्पेयर का हमारा करंट इंटेंसिटी पे हमें मतलब मिनिमल पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है। उसके बाद ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितना भी पल्स ड्यूरेशन को हम इंक्रीज़ करें, स्टिल हमें 10 मिली एम्पेयर के करंट पे हमें वहाँ पे मिनिमल पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो दैट्स हाउ वी यूज़ द वी फिगर आउट कि किस तरह से हम मतलब हम किस तरह से प्लॉट करते हैं एस डी कर्व को। एंड आई होप सबको आइडिया लगा। तो बेसिकली ये जो मिली सेकेंड्स की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा सेटिंग है ऑन द मोडालिटी पे हम 0.01 मिली सेकेंड के उस पर पल्स ड्यूरेशन पे रख रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जब हम प्लॉट कर रहे हैं, इन डैट केस हम 0.03 मिली सेकेंड के पल्स ड्यूरेशन पे इसको प्लॉट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग पल्स ड्यूरेशन पे प्लॉट करते हैं। एंड देन उसके बाद हम रियो बेस चेक करते हैं, मिनिमल अमाउंट ऑफ पैल्पेबल करंट जो हमें स्टार्टिंग में 100 मिली एम्पेयर पे मिला था, उसके बाद में करते करते हमें 50 एम्पेयर पे मिला, उसके बाद में 20 मिली एम्पेयर पे मिला। तो इस तरह से हमारा कर्व बनता है। And if that curve resembles this particular curve, then we can say that the particular muscle जिसका हमने SD curve चेक किया है, that is innervated. लेकिन if there is any deviation, तो ये भी हमारा नॉर्मल कर्व है, ये भी हमारा नॉर्मल कर्व है। ये हमारा कांस्टेंट करंट स्टिमुलेटर में है, ये हमारा कांस्टेंट वोल्टेज स्टिमुलेटर में है। एंड इसके अलावा अगर हमें कोई डिविएशन देखने को मिलता है, डिविएशन मतलब कुछ ऐसा अगर डिविएशन देखने को मिले, तो यहाँ पे डिविएशन कैसे हमें देखने को मिल रहा है, यू कैन ईजिली फिगर आउट कि जब हम पल्स ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं, इतना ज़्यादा पल्स ड्यूरेशन हमें देना पड़ रहा है, लेट्स से ऑलमोस्ट 3 मिली सेकेंड्स का हमें पल्स ड्यूरेशन पे लाना पड़ रहा है उस मोडेलिटी को, तब जाके हमें एक मिनिमल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। उससे पहले हमारा जो स्लाइट जो लेस अमाउंट ऑफ पल्स ड्यूरेशन पे था, उस पर हमें कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिल रहा। एंड सेम चीज़ की तो हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं अबाउट फेरेडिक एंड गैल्वेनिक करंट। गैल्वेनिक करंट, कौन से करंट में हमारा पल्स ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, गैल्वेनिक या फेरेडिक? गैल्वेनिक है ना? नहीं गैल्वेनिक, हाँ एग्जैक्टली गैल्वेनिक। फेरेडिक में तो इट इज़ 0.1 to 1 मिली सेकेंड है ना, 1 मिली सेकेंड एट मैक्स, उससे भी कम। लेकिन तो बहुत ही छोटे मतलब एक सेकंड के लिए एक आया, मतलब एक सेकंड में नहीं, 1 मिली सेकंड के लिए आया एक कॉन्ट्रैक्शन एंड वो चला गया। एंड उतने में ही अगर हमारी मसल्स जो है, अगर मसल्स हमारी इनोवेटेड है, तो एक बहुत छोटा सा पल्स ड्यूरेशन आया, तब भी वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन दिख गया मसल पे। लेकिन अगर लेट्स से ये मसल डिनर्वेटेड है, यहाँ पे इनर्वेशन नहीं है, तो इन दैट केस अगर मैं छोटा सा एक पल्स ड्यूरेशन दूँ, तो इन दैट केस कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो मुझे पल्स ड्यूरेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम गैल्वेनिक करंट में 1 मिली सेकेंड से ज़्यादा लंबे टाइम का पल्स ड्यूरेशन देते हैं। तभी वो चीज़ सेम हमें यहाँ देखने को मिल रही है। हम यहाँ पे पल्स ड्यूरेशन को हमें काफ़ी ज़्यादा, यू कैन सी कि 1 मिली सेकेंड से भी ज़्यादा पल्स ड्यूरेशन देना पड़ रहा है, तब जाके हमें एक मिनिमल पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। लाइक वाइज वी कैन सी कि यहाँ पे भी हमें 1 मिली सेकेंड से ज़्यादा, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज स्टिमुलेटर में भी हमें 1 मिली सेकेंड से ज़्यादा अमाउंट का पल्स ड्यूरेशन देना पड़ रहा है, तब जाके एक हमें मतलब सस्टेन्ड करंट हमें देना पड़ रहा है 1 मिली सेकेंड से ज़्यादा, तब जाके हमें वहाँ पे एक मिनिमल पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है। तो इट मीन्स कि तब तो इन दैट केस वी कैन से कि जब हमारा ये ग्राफ जो है हमारा राइट साइड की तरफ जितना ज़्यादा शिफ्ट होगा, इसका मतलब कि जितना ज़्यादा अमाउंट का पल्स ड्यूरेशन हमें देना पड़ रहा है, उसके बाद हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है। तो इसका मतलब है ये, मतलब इतना तो हमें एविडेंट है कि वो मसल जो है वो डिनर्वेशन में जा चुकी है, उस मसल में इनर्वेशन नहीं है। आई होप सबको ये समझ आया कि ये डिविएशन हमें क्यों देखने को मिलता है फ्रॉम द नॉर्मल कर्व। ठीक है, ओके। सो दैट इज़ कॉल्ड एज, तो इट मीन्स कि जब हम एस डी कर्व की बात करते हैं, एस डी कर्व हमारा ये बता सकता है कि एक मसल में इनर्वेशन है या डिनर्वेशन है, या फिर इसके अलावा पार्शियल डिनर्वेशन की भी बात कर सकता है। ये सब आई थिंक आप सबने पढ़ा होगा। दिस इज कॉल्ड एज, कैन एनीवन टेल मी इसको हम क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को? ये तो बहुत कॉमन, किंक ना, KINK, किंक। ठीक है,
ओके, दैट इज कॉल्ड एज किंक. तो यू कैन फिगर आउट कि देखो यहाँ पे स्लाइट स्मॉल लेवल ऑफ लेस लेवल ऑफ, यू कैन से अमाउंट ऑफ पल्स ड्यूरेशन पे भी हमें कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है. लेकिन उसके बाद अगेन हमें इस तरह का ग्राफ देखने को मिल रहा है. तो इन दैट केस वी कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल इस रीजन को, जो कि हमारा शार्प कॉर्नर्ड पॉइंट जो इस ग्राफ में हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज द किंग, KINK, किंग. ठीक है, नॉट द KING किंग, किंग नहीं, किंग, KINK. एंड दिस इज द रीजन वेयर वी कैन से कि इससे पहले वाले जो मसल, मतलब ये जो ग्राफ बता रहा है, इट सिग्निफाइज द इनर्वेशन ऑफ द मसल फाइबर्स. एंड इसके अलावा जो दूसरा सेकेंड हाफ ऑफ द ग्राफ जो है, इट डिनोट्स, इट शोज the level of you can say it shows denervated muscle fibers. ठीक है, तो it shows innervated and denervated as well. तो that is called as this is called as kink. And you can say in such kind of graph you can say that there is partial denervation. यहाँ पे इस मसल में कुछ फाइबर्स है जो कि इनर्वेटेड है एंड कुछ फाइबर्स है जिसमें इनर्वेशन नहीं है. दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल इनर्वेशन. ठीक है. So now there is one not the disadvantage but one एक चीज़ में लैग करता है हमारा एस डी कर्व. देयर इज वन थिंग इन विच एस डी कर्व लैग, जो कि इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देता. कैन एनीवन गेस, या कोई मेरे को बता सकता है कि लेट्स से हाँ निशा. हाँ, लार्ज मसल में ये पूरा शो नहीं करता. लार्ज मसल हाँ, लार्ज मसल में अगर हम कर रहे हैं तो लार्ज मसल में ये पार्शियल डिनर्वेशन शो कर सकता है, वो कर सकता है, मतलब पार्शियल डिनर्वेशन शो कर देगा. इवन तो हाँ, अगर हम लेट्स से क्वाड्स की अगर हम बात करें तो इन दैट केस हाँ, लेट्स से अगर हम वास्टस लैटरलिस का चाहते हैं कि वहाँ पे उसका एग्जैक्टली उसका मिले, तो उतना प्रिसाइसली वो नहीं बता पाएगा, बट स्टिल एटलीस्ट ये पार्शियल डिनर्वेशन तो बता ही देगा. लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका, दैट इज कि हाँ Only quantity. हाँ, हाँ, क्या बता रहे हो? it only shows it whether it is innervated or denervated, but the level or depth Exactly. up to which that एग्जैक्टली है ना. हाँ, तो इट मीन्स इट कैन ओनली शो कि if there is any kind of innervation or any kind of denervation or any kind of partial denervation. लेकिन it cannot show the level of denervation and it cannot show the region जहाँ पे denervation हुआ है. And for that we can use the nerve conduction velocity. देखो बेसिकली मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ. लेट्स से अगर मैं एस डी कर्व चेक कर रहा हूँ इस रीजन का, तो यहाँ पे ये ग्राफ मैंने जो प्लॉट किया, ग्राफ जो है वो सिर्फ ये बता पा रहा है कि हाँ, बाइसेप मसल जो है, बाइसेप मसल में कुछ डिनर्वेशन है. डिपेंडिंग अपॉन कि ग्राफ में जो डिविएशन है उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कुछ ना कुछ डिनर्वेशन यहाँ पे है या फिर पार्शियल डिनर्वेशन है. बट इट कांट शो मी द एग्जैक्ट लेवल ऑफ डिनर्वेशन, कि मतलब हमारा जो नर्व है, या एक पर्टिकुलर नर्व की अगर हम बात करें, उसका कौन सा लेवल है, वो कौन से लेवल पे वो नर्व जो है वो अफेक्टेड है. वो लेवल ऑफ नर्व अगर हमें फिगर आउट करना है, फॉर दैट वी कैन यूज़ द नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट, NCV. तो NCV में हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं. एक पैसिव इलेक्ट्रोड होता है, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, एंड एक तीसरा होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोड जो होता है, जो कि हम बेसिकली यूज़ करते हैं. तो अब उस इलेक्ट्रोड को हम जब मूव कर रहे हैं इस रीजन पे, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, लेट्स से इस पर्टिकुलर लेवल तक हमारा नर्व जो है वो अफेक्टेड है. तो इस लेवल के नीचे अगर मैं उस इलेक्ट्रोड को अगर मैं प्लेस करूँगा, तो इन दैट केस मुझे डिविएशन, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा उस टेस्ट में, है ना. तो इन दैट केस आई कैन फिगर आउट कि हाँ, एक पर्टिकुलर लेवल है जिसके नीचे मेरा जो नर्व है वो डिनर्वेशन में है, या फिर उस लेवल के बाद में हमारा नर्व जो है वो इट इज़ नॉट इनर्वेटेड. तो लेवल ऑफ नर्व डिनर्वेशन की अगर हम बात करते हैं, लेवल ऑफ नर्व डिनर्वेशन हमारा बताता है NCV, नॉट द SD कर्व. लेकिन SD कर्व सिर्फ इतना बता सकता है कि हाँ, वहाँ पे कोई ना कोई डिनर्वेशन या पार्शियल डिनर्वेशन है. लेकिन लेवल ऑफ डिनर्वेशन जो है, दैट इज that we can talk about by the use of the nerve conduction velocity test. सबको ये क्लियर हुआ कि नहीं? देखो, आई थिंक यही लिखा है, साइट ऑफ लीजन कैन बी फाउंड आउट ना. स्टिमुलेशन, देखो साइट ऑफ लीजन, कौन सा रीजन है, कौन सा साइट है ऑफ नर्व लीजन, दैट कैन बी फाउंड आउट बाय द यूज ऑफ नर्व कंडक्शन टेस्ट, है ना. एंड वी कैन से कि स्टिमुलेशन बिलो द लेवल ऑफ लीजन gives different response than stimulation above the level of lesion. तो इट मीन्स एक लेवल ऑफ लीजन के ऊपर अगर हम स्टिमुलेट कर रहे हैं तो इन दैट केस हमें अलग टाइप का रिस्पॉन्स मिलेगा, एंड उस लेवल के नीचे अगर हम स्टिमुलेट करें तो इन दैट केस अलग टाइप का रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा. एंड देन वी कैन फिगर आउट द लेवल ऑफ
डिनर्वेशन कि कौन से लेवल पे हमारा नर्व है इट इज सीवियर या फिर नर्व हमारा अफेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड एज द नर्व कंडक्शन टेस्ट। लेकिन ये लेवल ऑफ नर्व इंजरी हमारा एसडी कर्व नहीं बता पाएगा, ये सिर्फ इतना बता रहा है कि हाँ कोई ना कोई डिनर्वेशन है, लेकिन कौन से लेवल पे है वो नहीं बता सकता हमारा एसडी कर्व। ठीक है, आई होप सबको ये समझ आया। एंड एट द सेम टाइम हमारा पार्शियल आगे है ना, हमारा पार्शियल डिनर्वेशन हमारा एसडी कर्व बता सकता है, लेकिन वो चीज़ हमारा नर्व कंडक्शन टेस्ट नहीं बता पाएगा। मतलब पार्शियल डिनर्वेशन अगर कहीं पे है दैट वी कैन टॉक अबाउट बाय द यूज ऑफ एसडी कर्व बट नॉट बाय द यूज ऑफ नर्व कंडक्शन टेस्ट। ठीक है, ओके एंड ठीक है, हमने ये कवर कर लिया। एंड नर्व कंडक्शन वेलोसिटी इट इज़ नॉर्मल इट इज़ 70 मीटर्स पर सेकेंड और यू कैन से 252 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो दैट इज द स्पीड, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इम्पल्स थ्रू आउट द नर्व। एंड हमने नर्व इम्पल्स कंडक्शन की बात भी करी थी कल कि देर इज़ अ रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। एंड कौन सा पंप यूज़ होता है हमारा इस केस में, कौन सा पंप हम यूज़ करते हैं? हाँ सोडियम पोटेशियम। सोडियम, हाँ सोडियम पोटेशियम पंप यूज़ होता है यहाँ पे, 3 सोडियम 2 पोटेशियम पंप भी उसको हम कहते हैं ना। एंड उसकी वजह से देर इज़ अ रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, मतलब कि इट बिकम्स मोर नेगेटिव आउटसाइड एंड लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव इनसाइड ऑफ द नर्व। एंड देन वी कैन से देर इज़ अ जनरेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल जो कि आगे जाके आगे ट्रैवल करता है। एंड देन जो पीछे वाला जो लेवल है वहाँ पे इट कम्स बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट। ओके, तो ठीक है, दैट इज नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट। एंड देन देर आर दीज टर्म जो कि मैंने एक बार टर्म यूज़ किया अभी, दैट देर इज दिस रियो बेस। रियो बेस मीन्स जस्ट रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ रियो बेस एंड क्रोनेक्सी। तो रियो बेस बेसिकली मीन्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट दैट इज रिक्वायर्ड to produce a minimum amount of palpable contraction. ठीक है, तो it means कि the basic level of amount of current that is required to produce a minimal amount of palpable contraction that is called as Rio base. And इसके अलावा if you talk about the chronaxy होता है, it is chronaxy means the time duration, Rio base means the amount of current, the minimum current, अमाउंट ऑफ करंट की वैल्यू अगर हम फिगर आउट करते हैं तो दैट इज द रियो बेस। एंड अगर हम टाइम की बात करें, टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, that is the chronaxy. And the minimum amount of time duration or the shortest time for the impulse that is required to produce the amount of current that is twice of Rio base. तो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रियो बेस का जितना करंट था हमारा उसका ट्वाइस अमाउंट ऑफ करंट के लिए जितना अमाउंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम या शॉर्टेस्ट इम्पल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, टाइम के ड्यूरेशन की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज chronaxy. So chronaxy is basically the minimal amount of duration or the time that is required to produce the amount of the twice the amount of Rio base, that is called as chronaxy. And Rio base जो है that is basically the minimal amount of current that is required to produce the minimal amount of palpable contraction, that is called as Rio base. सबको उनकी definition clear हुई दोनों की? Yes sir. ठीक है, Yes sir. okay, that is chronaxy and the Rio base. Simply you need to remember the definitions only. And then we can say हाँ disadvantage अगर हम बात करते हैं, it doesn't show partial, हाँ NCV की अगर हम बात, नर्व कंडक्शन टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, इट वोंट शो एनी काइंड ऑफ पार्शियल डिनर्वेशन। या तो नर्व कंडक्शन टेस्ट में या तो वो डिनर्वेशन दिखाएगा या इनर्वेशन दिखाएगा, है ना, कि मतलब कोई डिविएशन दिखा रहा है, इट मीन्स कि कोई ना कोई डिनर्वेशन है। या फिर आप अगर कोई डिविएशन नहीं शो कर रहे तो इन दैट केस वी कैन से देयर इज प्रॉपर इनर्वेशन, बट इट कांट शो पार्शियल डिनर्वेशन विच वी कैन फिगर आउट बाय द यूज ऑफ एसडी कर्व। एंड बट इन एसडी कर्व वी कांट फाइंड आउट द level of nerve injury, or you can say level of denervation, but that we can figure out by the use of nerve conduction test. Okay, I hope we are done with these two tests, the nerve conduction test and the SD curve. आगे बढ़ूँ मैं? Yes sir. Okay, now talking about some of the other modalities that we can use. Basically ये हमारी diagnostic modalities है ना, ये हम diagnose कर रहे हैं। तो even though we are using an electrical stimulator जो कि हम therapeutic use के लिए करते हैं, but we are using it as for a diagnostic process है ना, कि मतलब हम diagnose कर पा रहे हैं वहाँ से level of denervation and the amount of denervation and all that. And इसके अलावा we have got certain more modalities, that is the EMG, that is the electromyograph, or we can see we have got the biofeedback machine. किसी ने देखा है biofeedback? अगर आपने बायोफीडबैक नहीं देखा होगा, यू मस्ट सी बायोफीडबैक। ये आपको किसी अच्छे
क्लिनिक्स में ही मिलेगा। आई डोंट थिंक कि किसी किसी मतलब कई हॉस्पिटल्स में भी नहीं मिलेगा ये, या तो किसी अच्छे क्लिनिक्स में या फिर किसी अच्छे लेवल ऑफ आपके हॉस्पिटल्स में मिलेगा, एंड या फिर कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपको बायो फीडबैक देखने को मिलेगा। तो बेसिकली द थिंग इज़ कि दैट बायो फीडबैक अगेन ये हमारा एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो वट इज़ बीइंग डन दैट EMG अगेन द इलेक्ट्रोमायोग्राफ इज़ यूज, बट EMG में हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं। या तो हमारे पास नीडल इलेक्ट्रोड होता है जो कि बेसिकली पियर्स करता है, एंड उसके अलावा जो कि नॉर्मली लेट्स से अगर हम एक इंडिविजुअल देखते हैं जो कि उसका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, मतलब ये मेनली हम यूज़ नहीं करते ये, इट कैन बी यूज बाय द नॉट बाय द फिजिशियन, बाय मे बी द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द जो सर्जन है या वो सब मसल एक्टिविटी को चेक करने के लिए। इन दैट केस दे कैन यूज द कोएक्सियल नीडल इलेक्ट्रोड and they can pierce it through the muscle, and then they can figure out the activity, the type of activity वो muscle जो show कर रहा है। तो in that case we can see by the use of EMG we have got different types of waves। तो जैसे हमारा एक होता है fibrillation potential, दूसरा हमारा positive sharp waves। So these are basically some of the names given to different types of you can say wave forms जो कि हमें EMG में देखने को मिलेगा स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा हमारा फेसिकुलेशन पोटेंशियल होता है, एक हाई फ्रिक्वेंसी डिस्चार्ज होता है। तो डिफरेंट कंडीशंस के बारे में बता सकते हैं अलग अलग टाइप ऑफ वेव फॉर्म्स। लेट्स से अगर हम पहली बात करते हैं फिब्रिलेशन पोटेंशियल, तो फिब्रिलेशन पोटेंशियल इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेव फॉर्म दैट इज बीइंग शोन ऑन द इलेक्ट्रोमायोग्राम, ठीक है, जो कि वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। एंड इन दैट केस यू कैन से देर इज़ अ पल्स ड्यूरेशन ऑफ 1 to 2 मिलीसेकेंड, एंड इसके अलावा 50 to 300 माइक्रो वोल्ट्स का एम्पलीट्यूड रहता है। तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, बट एटलीस्ट रिमेंबर द नेम्स, जो हमारे नाम मतलब अलग अलग वेव फॉर्म के रहते हैं इन द यूज ऑफ EMG, जब हम EMG को यूज़ कर रहे हैं। वी हैव गॉट अ फिब्रिलेशन पोटेंशियल, पॉजिटिव शार्प वेव्स, वी हैव गॉट फेसिकुलेशन पोटेंशियल, एंड वी हैव गॉट हाई फ्रीक्वेंसी डिस्चार्जेस। हाई फ्रीक्वेंसी डिस्चार्जेस में देर इज़ अनदर थिंग। अगर आपने कभी देखा होगा EMG यूज़ करते हुए, you will see कि वहाँ पे there is a particular type of sound that is called as the dive bomber sound. Bomber sound is basically being heard in the case of conditions like poliomyelitis, नहीं sorry, polymyositis, and इसके अलावा there is this condition that is called as dystrophia myotonica. Can anyone tell me dystrophia myotonica कौन सी condition है? ये हमने पढ़ी है, डिस्ट्रोफिया मायोटोनिका। कोई बता सकता है कौन सी कंडीशन है? दिस इज बेसिकली मसल डिस्ट्रॉफी, है ना, डिस्ट्रॉफी एंड मायोटोनिका मीन्स मसल, है ना। तो इट इज़ मसल डिस्ट्रॉफी। तो इन केस ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और इन केस ऑफ polymyositis, again muscles getting affected at different regions. So in those conditions we can have a dive bomber sound. Just remember the term dive bomber sound on the loudspeakers, and that can be heard in case of high frequency discharges type of waveform being seen in the use of EMG. And इसके अलावा we can find out these 4 different types of waveforms in the use of EMG. That is in that case we can use the कोएक्सियल नीडल इलेक्ट्रोड। लेकिन इसके अलावा वी हैव गॉट दिस बायोफीडबैक मशीन जो कि हमारे जो विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय अस फिजियोज, एंड इन दैट केस वी हैव गॉट दिस सरफेस इलेक्ट्रोड जो कि प्रेजेंट होते हैं। अगेन वी आर यूजिंग दिस EMG ओनली, है ना, ऑन पर्टिकुलर मसल्स लाइक वी कैन सी हियर। So here we have got these surface electrodes where we place it, and then we ask the person to perform certain activity. And let's say here we can see the person is performing certain activity by holding this particular thing and then performing, let's say, abduction of the deltoid muscle. And in that case we can figure out there are different waveforms that is being formed, है ना, जो कि हमारा deltoid muscle की contraction में हमें देखने को मिल रहा है। And then we can figure out, let's say there can be auditory clicks or visual meters that can be used for checking the muscle's activity, and the signal produced in EMG proportional to the electric activity of the muscle. So we can figure out the level of electrical activity, and then we can figure out the muscles functioning, है ना, by the use of EMG. EMG is by the use of biofeedback. Biofeedback basically हमारा EMG machine है, लेकिन इस केस में we are using the surface electrodes and not the needle electrodes, and that is the biofeedback. ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं। आई होप वी आर क्लियर विद दिस थिंग। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी चलता हूँ बिकॉज ये सब हमने पढ़ा हुआ है। बस हमारा अब 2 चीज़ें बची है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। एक हमारा टेंस है एंड दूसरा हमारा IFT है, जो कि हम दोनों चीज़ें हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस ऑफ टेंस
just remember some of these frequencies and pulse width जो कि book में दिया हुआ है. We can use pulse shape जो है वो हमारा rectangular हो सकता है. Rectangular means there is sudden increase and then sudden decrease in the wave form है ना. इसके अलावा intensity can be used from 0 to 60 milliampere, and there can be a tingling type of sensation that can be felt by the person. And there can be various therapeutic uses. इसके लिए हम TENS use कर सकते हैं. It can be used for pain relief है ना, and for various different reasons as well. And positioning of electrode, we can use place it on the motor point or acupuncture point or trigger point or something else, and or appropriate peripheral nerve, and then we can stimulate that particular nerve है ना. Now the thing that we need to remember here is हमारे पास दो टाइप की टेंस होते हैं. एक हमारा हाई टेंस है एंड दूसरा हमारा लो टेंस है. Just remember this thing, the high tense and the low tense. First of all, the thing is that high tense can be used, तो it causes complete tetanic type of contraction. मतलब complete tetanic contraction के लिए we can go for the high tense. इसके अलावा we can go for the low tense where we don't want that high level of muscle contraction, or you can say if the nerve supply to that particular muscle is affected है ना, अगर वो nerve severed है, तो in that case we can go for low tense जहाँ पे we are using less amount of this frequency of the current as compared to high tense जहाँ पे हम we are using 100 to 500 hertz of frequency. And इसके अलावा तो low tense में अगर हम देख रहे हैं तो we can use a frequency of 1 to 5 hertz and then a pulse width of 100 to 150 milliseconds. That is called as low tense and the high tense. So different types of current, and again used for different types of conditions. And and again the thing is that we can talk about these things that is called as enkephalins and beta endorphins. ये हमने टर्म कहाँ पे यूज़ किया था, कोई मेरे को बता सकता है? एनकेफलिन्स एंड बीटा एंडोफिन्स पेन गेट थ्योरी में है ना. एंड पेन गेट थ्योरी में हमारा कौन सा कॉलम था जो कि रिस्पॉन्सिबल, कौन सा ट्रैक था जो कि रिस्पॉन्सिबल था फॉर बीटा एंडोफिन्स एंड एनकेफलिन्स? डॉर्सल कॉलम ऑफ मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे ना. हाँ डॉर्सल कॉलम ऑफ मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे. इसके अलावा हाँ आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो कि पेन स्टिमुलेशन मतलब पेन के लिए था. एंड वी कैन प्रिसाइसली टॉक अबाउट द ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स जो कि हमारा पेन लेके जाता है. एंड देन इट वाज ओवर राइडिंग by the dorsal column of medial lemniscus pathway, and then we can see there is a release of enkephalins and beta endorphins, and which block the forward transmission of pain and all that. And then so by the use of TENS we can have a release of enkephalins and beta endorphins, and then we can see that जो pain है वो decrease कर जाता है by the use of pain gate theory. And ठीक है मतलब दिस कैन वेरी कितना टाइम के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं. हाँ दिस इज़ इंपॉर्टेंट दैट देयर कैन बी अ पोर्टेबल टेंस एज वेल. आपने कोई इमेज या कहीं पे देखा होगा, देयर इज़ अ स्मॉल टेंस मशीन, बहुत छोटी सी मशीन होती है. वी कैन प्लेस इट with the muscle or something else, and like when a person is training, तो in that case let's say एक एथलीट का एक पर्टिकुलर मसल let's say quads या फिर let's say tibialis anterior calf muscle, कोई एक है मसल जो कि मे बी स्ट्रेन में चली गई थी. एंड आफ्टर अ प्रॉपर rehab of that muscle we can just place that portable TENS with that muscle of the person, and it will stimulate the muscle effectively है ना, while the person is performing some of the एक्टिविटीज़ है ना. जब पर्सन ट्रेन कर रहा है, एथलीट ट्रेन कर रहा है या फिर कोई एक्टिविटी या कोई मूवमेंट कर रहा है, उस टाइम पे साथ में इट इज़ स्टिमुलेटिंग द मसल एज वेल. तो दैट कैन बी यूज इन दैट केस वी कैन गो फॉर द पोर्टेबल टेंस एज वेल. एंड देन वी हैव गॉट सम काउंटर इंडिकेशन दैट वी नो द कार्डियक पेसमेकर. ऑफ कोर्स it will interfere with the pacemakers frequencies के अलावा implants and malignancy and pregnancy and wounds and all that. And in those cases we need to avoid the use of TENS है ना. देखो प्रेगनेंसी की अगर हम बात करते हैं ना, मेनली इट इज़ अबाउट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यू कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड ऑल. हाँ स्टिल वी नीड टू गो फॉर प्रॉपर असेसमेंट, ताकि वी नीड टू फिगर आउट कि कोई और कंडीशन तो नहीं है पर्सन को, या फिर मे बी बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी कोई और रीज़न तो नहीं जहाँ पे हमें कॉन्ट्राइंडिकेट करना पड़ेगा एक मोडालिटी को या फिर एक टेक्निक को या किसी चीज़ को. लेकिन स्टिल in first trimester still we can go for a large majority of electrotherapy modalities and various different techniques. लेकिन after the end of first trimester, then second and third trimester में we need to have an extra we need to take extra precautionary measure for that ना. तो in that बस first trimester में still काफ़ी
मतलब चल जाता है काफ़ी चीज़ें. एंड likewise we have got another equipment or modality that is called as IFT, that is interferential therapy. तो बेसिकली इसका भी मैकेनिज्म सेम रहता है just like the TENS. डिफरेंस सिर्फ ये है कि इन केस ऑफ IFT, ओके, तो बेसिकली इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम वी जस्ट वांट कि IFT में हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स रहता है. लाइकवाइज टेंस में भी हम हाई फ्रीक्वेंसी करंट यूज़ कर रहे हैं, एंड वैसे IFT में भी हम क्या कर रहे हैं, वी हैव गॉट हाई फ्रीक्वेंसी करंट. लेट्स से हमारे पास 4000 हर्ट्ज या फिर लेट्स से 3900 हर्ट्ज का करंट हमारे पास है. नाउ द थिंग इज़ कि जितना इतना हाई फ्रीक्वेंसी अगर करंट रहता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज़ Z, इम्पिडेंस. इम्पिडेंस मीन्स करंट के अगेंस्ट मतलब करंट को कितना हम इम्पीड कर रहे हैं, मतलब कितना करंट को हम रोक रहे हैं, है ना. तो करंट के लिए इम्पीडेंस, करंट के लिए रुकाव जो है, उसका फॉर्मूला जो है दैट इज़ हाफ ऑफ पाई, दैट इज़ पाई मतलब जो हमारा वाला वो जो पाई होता है 3.141 वाला या 22/7 है ना. एंड देन फ्रीक्वेंसी एंड देन कैपेसिटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्किन या ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर. क्या कैपेसिटेंस कोई मेरे को बताएगा? कैपेसिटेंस हमने पढ़ा था ना, कैपेसिटेंस क्या होता है? Capacitance is the ability of to hold, to store. हाँ, to store electrons है ना in a particular structure, that is called as its capacitance है ना. and capacitance and potential दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली होते हैं कि इन्वर्सली होते हैं प्रोपोर्शनल? कैपेसिटेंस एंड Inversely इन्वर्सली proportional. है ना. हाँ, जहाँ पे जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, जिसका एरिया ज़्यादा होगा, वहाँ पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कम हो जाएगा. एंड देन वी कैन से कि हमारा कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वो दोनों हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. लाइकवाइज ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कैपेसिटेंस. एंड जस्ट रिमेंबर दिस कि ये हाफ है ना, ये सारा डिनोमिनेटर में है. मतलब इसको मैं लिख नहीं पाया यहाँ पे किस तरह से, लेकिन इट इज़ लाइक वन होल डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर में 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू कैपेसिटेंस. तो बेसिकली बाय द यूज़ ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फिगर आउट कि दैट फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी एंड इम्पिडेंस बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मतलब कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा है उतना इम्पिडेंस कम होगा, एंड फ्रीक्वेंसी जितनी कम है उतना फ्रीक्वेंसी एक मिनट, मैंने कुछ वो कर लिया, फ्रीक्वेंसी नहीं, ओके ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पिडेंस. तो बेसिकली वी कैन सी कि वी हैव गॉट 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स जो कि एक कम फ्रीक्वेंसी, मतलब वी कैन से कि हमारे पास एक 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स को हम यूज़ करते हैं. लाइकवाइज जैसे हम वी कैन से 4000 एंड 3900 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स हमारे पास है, दैट वी कैन यूज़ टू गेट अ बीट फ्रीक्वेंसी. दोनों का हमें वी कैन से दोनों का जो डिफरेंस रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ बीट फ्रीक्वेंसी, एंड वी कैन गेट अ लो फ्रीक्वेंसी करंट. मतलब 2 मीडियम फ्रीक्वेंसीज अलो टू क्रॉस द पेशेंट्स टिश्यूज एट अ फिक्स्ड पॉइंट. लेट्स से अगर हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हमारे पास सर्किट ए जो है, मतलब सर्किट ए मींस लेट्स से हमारा इस क्रॉस में एक सर्किट है जिसके पास जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज़ 4000 हर्ट्ज. एंड देन उसके बाद हमारे पास दूसरा सर्किट जो है, सर्किट बी, इसका जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 3900 हर्ट्ज. तो दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज कॉल्ड एज बीट फ्रीक्वेंसी. बीट फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली द डिफरेंस between frequencies of two currents, that is called as beat frequency. And then we are getting a low frequency current, मतलब 2 medium frequencies को use करके we get a low frequency current. and low frequency current को हम use करते हैं and so as to get maximum output. तो for that is the mechanism how we go about using the IFT. तो इन केस ऑफ टेंस वी डोंट यूज अ बीट फ्रीक्वेंसी. टेंस में हम एक ही सर्किट यूज़ कर रहे हैं, बट इन केस ऑफ IFT वी आर यूजिंग 2 डिफरेंट सर्किट, सर्किट ए एंड सर्किट बी. एंड जस्ट रिमेंबर दिस कि एक पर्टिकुलर सर्किट को हम डायगोनल पैटर्न में रखते हैं. जैसे ये रेड में जो दिखाया गया, इट इज सपोज इट इज सर्किट ए, तो सर्किट ए हमारा एक डायगोनल पैटर्न में है, एंड देन वी हैव गॉट अनदर डायगोनल पैटर्न में हमारा सर्किट बी. एंड देन उनका वी कैन से जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का, दैट इज कॉल्ड एज बीट फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारा एक्चुअल लो फ्रीक्वेंसी करंट रहता है. एंड देन वी कैन से कि उन सारे सर्किट्स का, मतलब दोनों सर्किट का जो इफेक्ट रहता है दैट इज समवेयर एट द सेंटर ऑफ द रीजन जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोड्स वेयर दे आर प्लेस्ड, है ना. and then 2 pair of electrodes are used and both the pairs are placed diagonally to each other, and the total current intensity is the sum of both the units. दोनों सर्किट का जो करंट इंटेंसिटी है, उनको दोनों का सम जो होता है, उतना अमाउंट ऑफ करंट इंटेंसिटी हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट उस पेशेंट को मिल रहा है, दैट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा सर्किट ए का एंड सर्किट बी का.
and again we can use it for pain relief by the use of pain gate, and इसके अलावा increase local circulation and all that, है ना, and for the release of enkephalins and beta endorphins and all that thing, and it can be used for that. And the thing that needs to be remembered is again it needs to be kept well away from SWD, at least you can say 2 or 3 meters away, या उससे ज़्यादा हो तो it is even better. तो it needs to be kept away from the SWD machine, specifically हमारा IFT, because again इसका जो beat frequency होगा it will hamper, or you can say the SWD का जो frequency है, it will hamper the frequency of the beat frequency of the IFT, and because of that we can see it might not work properly, and it can be used in sports medicine to relieve pain, and in case of edema and all that we can go for this thing, है ना. तो द थिंग इज कैन दैट आप जब IFT यूज़ कर रहे हो ना, IFT कैन बी यूज फॉर इन केस ऑफ एडिमा एज वेल, मतलब एडिमा कहीं पे अगर प्रेजेंट है तो एडिमा के केस में भी यू कैन अप्लाई द IFT, एंड यू कैन सी बाय द पंपिंग, लेट्स से मेनली हमारा जैसे काफ मसल्स है वहाँ पे वी कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर type of current, and by the pumping of muscle you will see that there will be a drainage of the tissue fluid, and because of that the amount of edema will decrease. तो ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिकली तो यूज़ करते हैं, बट इन सब चीज़ों को मज़ा तब आएगा जब इनको हम थियोरेटिकली तो पढ़ते हैं, लेकिन इनको हम प्रैक्टिकली जब यूज़ करेंगे तब इसको ज़्यादा मतलब वी कैन यूज़ इट मोर एफिशिएंटली. लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली बहुत ही लिमिटेड वे में यूज़ करते हैं, इवन दो हमारे पास IFT मोडालिटी रखी होती है, लेकिन स्टिल हम उसको एट मैक्स सिर्फ पेन रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं. बट वी मस्ट लाइक मोटिवेट आवरसेल्व्स एज वेल एज अदर्स, ताकि हम उनको इन मोडालिटीज़ को नॉट ओनली फॉर पेन, बट इसके अलावा लेट्स से आपके पास एथलीट अगर आपके पास आ रहा है, फॉर श्योर काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो आपके पास एडिमा लेकर ही आएगा, बिकॉज बहुत कॉमन हमें केस देखने को मिलता है एडिमा का. या इसके अलावा आपके पास डीप वेन थ्रोम्बोसिस या वेरिकोस वेन की कंडीशन आपको मिलते हैं, तो उस केस में यू कैन अप्लाई इट, है ना. आप उसको अप्लाई करके यू कैन अप्लाई इट विद कंप्रेशन, एंड देन यू विल सी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जब मिलेगा इट विल हेल्प इन वेनस ड्रेनेज, वीनस ब्लड जो कि हमारा पूल अप हो गया है इन द पेरिफेरल वेन्स, है ना, लोअर लिम्ब के. इट विल हेल्प टू पंप द मसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब, मेनली जो हमारी काफ मसल्स है, पेरिफेरल हार्ट को इट विल कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन उसके बाद वहाँ से जो हमारा वीनस ब्लड है उसको ये पंप करेगा प्रॉक्सिमली. तो वी कैन यूज़ इट फॉर वेरियस डिफरेंट फंक्शंस, बट वी आर नॉट यूजिंग इट दैट एफिशिएंटली. बट बेसिकली दैट इज द IFT एज अ होल. तो आई होप वी आर डन विद दिस. कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेशन अगेन सेम एज लो फ्रिक्वेंसी करंट या वो जो बाकी इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ है, इसका सेम हमारा IFT का भी रहेगा. आई होप वी आर डन विद दिस विद IFT. आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? मुझे लगता नहीं कि आप लोग सुन रहे हो. Yes, sir. ठीक है, तो वे एक बार हम समअप कर लें. हमने मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है, अभी भी ब्रेक हो रही है. ठीक नहीं हो रही, मतलब कुछ देर के लिए चली जा रही है फिर आ रही है, ऐसा हो रहा है. ओके, तो मेरे को पहले बता देते. चलो कोई नहीं, अभी ठीक है ना. सर ओके. तो हमने कौन सी इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ हमने पढ़ ली है. कुछ हम एग्जांपल लेके चले. टेंस हमने पढ़ लिया, हमने IFT पढ़ लिया, हमने US मोडालिटी का यूज़ करके US मोडालिटी में अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके, जहाँ पे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. लेकिन उसका यूज़ करके हमने आयोनोफोरेसिस की बात कर ली. नहीं, फोनोफोरेसिस की हम बात करेंगे, लेकिन आयोनोफोरेसिस की हम बात करेंगे हमने कर लिया बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसके अलावा हमने किसकी बात कर ली? हमने टेंस की बात कर ली है, एंड और कौन सा मोडालिटी हमने बात करी. आई थिंक ये सारी मोडालिटीज़. हाँ, मतलब फेराडिक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर एंड ऑल दैट. एंड इसके अलावा हमने करंट्स की बात करी, अलग अलग टाइप ऑफ करंट, एंड कैसे हम डायरेक्ट करंट को मॉडिफाई करते हैं फॉर डिफरेंट यूजेजेस, एंड उसके अलावा डिफरेंट वेव फॉर्म्स फॉर द करंट ना. एंड इसके अलावा मेनली फ्रीक्वेंसी एंड टाइम ड्यूरेशन क्या मतलब यूज़ रहता है. तो आज के बाद में कभी भी हमारे पास कोई पेशेंट आएगा विद सबसे पहले हमने SD कर्व बना के देखा, या फिर मे भी हमने नर्व कंडक्शन टेस्ट किया. मेनली नर्व कंडक्शन के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स रहते नहीं, लेकिन हम SD कर्व चेक कर सकते हैं. हमने SD कर्व चेक किया, एंड उसके बाद में हमें पता चला कि वहाँ पे पार्शियल डिनर्वेशन है या फिर कंप्लीट डिनर्वेशन है. तो उसके बाद हमने फिगर आउट किया कि इस पर्टिकुलर पर्सन में वी कांट गो फॉर फेराडिक करंट, है ना, हमें गैल्वेनिक करंट यूज़ करना पड़ेगा, या फिर वी नीड टू
इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ द पल्स विड्थ है ना, एंड इसके अलावा हमें फ्रीक्वेंसी को काफ़ी ज़्यादा कम करना पड़ेगा. देन वी कैन फाइंड अ suitable palpation of the we can find out a suitable contraction of that muscle ना. इसके अलावा अगर फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है एंड टाइम ड्यूरेशन काफ़ी कम है तो बाय नॉट बाय एनी चांस हमें कोई कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा ना, नहीं देखने को मिलेगा उस मसल पे. तो इसलिए वी नीड टू ऑल्टर द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम ड्यूरेशन, एंड देन उसके बाद में ऑफ कोर्स हमारा लास्ट में जो हम अमाउंट ऑफ करंट इंटेंसिटी है उसको तो हम अल्टर करते ही है. करंट इंटेंसिटी हम देखते हैं कितना ज़्यादा बढ़ाने के बाद में हमें वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मिल रहा है. ठीक है, तो दोज आर बेसिकली द इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़. मैं आई नो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया एंड इट इज़ बिकमिंग अ बिट बोरिंग, तो इसको मैं यहाँ पे रोक देता हूँ एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट द हीटिंग मोडालिटीज़. तो हीटिंग मोडालिटीज़ में वेंट हॉफ्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है. कोई मेरे को बताएगा वेंट हॉफ्स लॉ क्या है? अगर आपने नहीं पढ़ा अभी यहाँ पे क्या लिखा था तो कोई बताएगा. वेंट हॉफ्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है पहले. टिश्यू टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है. हाँ, by the use of any rate of reaction or any metabolism, its rate will increase by the addition of temperature, by the increase of temperature of the by the addition of heat, है ना. then we can say it is called as Van Hoff's law. and then we can say हाँ मतलब blood pressure will decrease, of course. blood pressure हमारा decrease हो जाएगा by the use of any heating modality or any kind of heat. It will, because there will be a vasodilation. इलेक्ट्रिक शॉक के केस में क्या होता होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता होगा कि डिक्रीज करता होगा? व्हाट डू यू थिंक? डिक्रीज करेगा, बिकॉज अगेन देयर विल बी वैसोडाइलेशन कर जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल डिक्रीज. वैसो डायलेट हो गया ना, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स है उनका ल्यूमेन जो है वो डायलेट हो गया, ज़्यादा स्पेस मिल गया. तो जितनी स्पीड से हमारा ब्लड फ्लो कर रहा था उतनी स्पीड से नहीं कर पाएगा, तो बिकॉज ऑफ दैट हमारा ब्लड प्रेशर विल डिक्रीज. ब्लड का जो प्रेशर है ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज इट विल डिक्रीज, है ना. एंड तभी हम कोई हॉट ड्रिंक या कुछ हम प्रोवाइड नहीं करते ना टू अ पर्सन जिसको कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगाया है उसके बाद में, बिकॉज ऑफकोर्स पहले ही वैसोडाइलेशन हुआ, उसके बाद में हम और वैसोडाइलेशन नहीं करना चाह रहे हैं. एंड इसके अलावा वी कैन सी देयर विल बी अ सेडेटिव इफेक्ट ऑफ कोर्स सेडेशन हमें देखने को मिलेगा. एंड इसके अलावा वी कैन सी देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स विच विल हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, है ना. तो इसके अलावा हमने यूज़ ऑफ इफेक्ट्स ऑफ हीट के बारे में हमने पढ़ा था पहले, लेकिन इसके अलावा इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द बॉडी स्ट्रक्चर्स उसके बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं. तो इसको हम यहाँ पे रोक देते हैं. एंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बाय इलेक्ट्रिक, हाँ, बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो वी कैन सी देयर इज़ प्रोडक्शन ऑफ हीट, है ना. ऑफकोर्स जब हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं, आपने देखा होगा वो इलेक्ट्रोड हटाने के बाद में आपको उस एरिया वो आपको रेडिश देखने को मिलेगा. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हीट, नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नॉट डायरेक्टली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो डिसिपेट हुई इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो हीट की वजह से हमें वो रेडनेस वहाँ पे मिला ना, वो जो एरिथमिया हमें देखने को मिला वहाँ पे. दैट इट मीन्स कि देर इज़ हीट दैट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड देर इज़ दिस टर्म दैट इज कॉल्ड एज इम्पिडेंस. तो इम्पिडेंस मीन्स कि जितना करंट के लिए इम्पिडेंस है, जितना स्किन का रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना, जितना स्किन का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उस केस में हमें ज़्यादा अमाउंट का हीट प्रोड्यूस मिलेगा एंड वहाँ पे ज़्यादा एरिथमिया भी देखने को मिलेगा. एंड इन द केसेस जहाँ पे हीट रेजिस्टेंस, जहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कम है, तो हमने इसकी बात करी थी ना, जैसे एक पर्सन है जो कि मस्कुलर है, दूसरा पर्सन है जो कि ओबीस है, जिसमें फैट लेवल ज़्यादा है. तो किस पर्सन में अमाउंट ऑफ इम्पिडेंस ज़्यादा होना चाहिए करंट के लिए? इन द फैट पर्सन और इन द obese person ना. obese person में impedance will be more as compared to another person जो कि ज़्यादा muscular है. that is because for transmission of electric current we require electrolytes, है ना. हमें fluids की ज़रूरत है जो कि ज़्यादा हमें muscle में मिलेगा as compared to fat, and that's why we can see there will be more amount of impedance in case of obese individuals as compared to individuals with less amount of body fat, है ना. ओके चलो ठीक है. हम SWD, देन वी हैव गॉट द माइक्रोवेव डायथर्मी. ओके, इसमें हमारा कोप्लेनर, कॉन्ट्राप्लेनर, ये सब आपने पढ़ा होगा, है ना. ये इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे. एंड देन वी हैव गॉट दिस डिफरेंट मेथड्स, केबल मेथड, एंड उसके बाद हमारा ये कैपेसिटर फील्ड मेथड. ये अलग अलग मेथड्स होते हैं ऑफ यूज़ इन SWD. एंड उसके बाद वी कैन सी कि हाउ इन डिफरेंट पैटर्न्स वी कैन प्लेस द केबल, है ना. केबल आपने SWD यूज़ किया होगा. आपने कभी नोटिस किया है कि कभी अगर SWD की वायर जो है
अगर let's say अगर वो पेशेंट के बॉडी पे या फिर किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी पे अगर वो प्लेस होती है, तो वो पर्सन कंप्लेन करता है कि जहाँ पे केबल रखी है वहाँ पे भी मुझे हीट फील हो रहा है, कभी अगर आपने नोटिस किया हो तो। ठीक है, तो इट Yes, मीन्स sir. है ना, तो इट मीन्स देर इज बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। एक तो पहले इंडक्शन का मेथड काम करता है, यहाँ पे दो सर्किट होते हैं, एक पेशेंट सर्किट होता है, एक मशीन सर्किट होता है। एंड देन देर इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि इंडक्शन हमने हमने किसमें ट्रांसफार्मर्स में भी हमने पढ़ा था ना। एंड लाइकवाइज हम वी कैन सी कि हमारा यहाँ पे भी देर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड बाय द यूज़ ऑफ दैट वी कैन सी कि देर आर दिस मैग्नेटिक फील्ड्स जो कि हमारी फॉर्म होती है परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमारी वायर के थ्रू ट्रैवल कर रही है। बिकॉज ऑफ दैट देर इज प्रोडक्शन ऑफ हीट, एंड देन देर इज प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट्स एज वेल। एंड वो एडी करंट जो प्रोड्यूस होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी हमें वो हीट जो है वो फील होती है कि अगर अगर कहीं हमारी बॉडी पार्ट पे केबल रखा रहता है तो देन वी कैन एलिमिनेट दैट हीट अगर हम उस केबल को, तो दैट्स वाई वी नीड टू प्रॉपरली प्लेस सम टॉवल्स और समथिंग उस केबल के नीचे, जितना वो हो सके वो केबल को हमें बॉडी स्ट्रक्चर पे प्लेस नहीं करना है ना, अनलेस वी आर यूजिंग अ केबल मेथड। केबल मेथड अगर हम यूज़ करें तो इन दैट केस वी नीड टू प्रॉपरली प्लेस द केबल ऑन, तो उस केस में हम इलेक्ट्रोड प्लेस नहीं करेंगे, उस केस में हम डायरेक्टली हमारा केबल जो होगा वो हम प्लेस करेंगे। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। देन वी हैव गॉट द पल्स्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, एंड देन वी हैव गॉट द इंफ्रारेड रेडिएशन IRR, लेज़र, देन पैराफिन वैक्स, देन उसके बाद माइक्रोवेव डायथर्मी, देन उसके बाद यूएस में हमारा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड देन रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैन एनीवन टेल मी कि हमारा जो यूएस मोडालिटी काम करता है वो किस पे करता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कि रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे? किसी को ध्यान है? इट फंक्शंस ऑन रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली होता क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि कोई भी मटेरियल अगर 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 हम उसको वेरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्रेशन अगर देते हैं, तो इन दैट केस इट हैज़ दैट एबिलिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब कि it is the ability of certain materials to generate an electric charge in response to applied mechanical stress. So there can be various जैसे we can see we have got the quartz crystal, है ना, we have got barium quartz crystal, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके ऊपर हम वेरियंग अलग अलग डिफरेंट टाइप से अगर हम कंप्रेशन देते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट इट हैज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सर्टेन इलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट इज कॉल्ड एज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसका अगर हम उल्टा कर दें कि अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज दें उस मटेरियल को, ये हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स है, एंड इसको अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज दें जो कि हम करंट से, तभी हम यूएस मोडालिटी को करंट से अप्लाई करते हैं ना, मतलब करंट करते हैं, तो इसको अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज दें, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ वी कैन सी देर इज इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से देर विल बी वेरिंग टाइप ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, मतलब कंप्रेशन and then rarefaction of this material, and because of that there will be production of this kinetic energy, जो kinetic energy produce होगी because of the varying different types of movement of these crystals, and that is called as reverse piezoelectric effect. And because of that we can see कि वो that is the ultrasound wave जो कि हमारा form होता है in the modality, and then we can use for therapeutic processing therapeutic फॉर रीजन्स। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज द मैकेनिज्म जिसको यूज़ करके हमारा यूएस मोडालिटी जो है वो काम करता है, नॉट बाय द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बाय द यूज ऑफ रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर्ली हम इसकी बात करेंगे। क्वार्ट्ज एंड बेरियम क्रिस्टल्स इसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारा एक टर्म होता है एटेन्यूएशन, एक होता है हाफ वैल्यू डिस्टेंस। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, अगेन यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। देन वी हैव गॉट यूवी में हमारे पास दो है, एक क्रोमियल लैम्प है, एक हमारा दूसरा एक और लैम्प होता है ना, कौन सा है, एक क्रोमियल, हाँ, हाई प्रेशर मर्क्यूरी लैम्प, एक हाई प्रेशर मर्क्यूरी लैम्प है, एंड दूसरा हमारा क्रोमियल लैम्प है। देन वी हैव गॉट दिस प्यूब apparatus दैट इज सोरेलिन UVA, तो ये भी अगेन वी विल सी कि वी आर यूजिंग इट। एंड देन वी हैव गॉट द कोल्ड थेरेपी जिसमें हमारा लुइस हंटिंग इफेक्ट काम करता है, एंड देन उसके बाद वी विल बी डन विद दिस। ओके, लेट्स सी हम कल कितना कर पाएंगे इसको। मे बी ये शायद परसों तक जाए, कल हम इसको करके परसों तक मे बी 3 या 4 टॉपिक हमारे बच जाएंगे। परसों वी विल बी डन विद इलेक्ट्रो, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विथ दिस थिंग विथ एक्सरसाइज। ठीक है, ओके, तो कल हम फिर इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑल द मेथड्स एंड द मोडेलिटीज फॉर हीटिंग ऑफ द टिश्यूज। ठीक है, ओके, एनी डाउट टिल नाउ? आई होप अगेन इसमें जहाँ कंसेप्ट, ठीक है, जहाँ कंसेप्ट आ रहा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है. कंसेप्ट आर इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज है ना, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लीन सेंट्रिक इफेक्ट. इसके अलावा हमने लॉज बहुत सारे पढ़ लिए, वो लॉज आपको याद रखने ज़रूरी है, ये सब ज़रूरी है. लेकिन इसके अलावा जहाँ पे मोडालिटी का कोई फ्रीक्वेंसी या कुछ या वेव लेंथ या कुछ अगर हमें याद रखना पड़ रहा है, तो वो हम वी कैन रेफर बैक टू आर नोट्स उसके लिए. लेकिन उसके अलावा जो कंसेप्ट है वो हमें याद, वो हमें समझ आ जाना चाहिए. दैट इज़ इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो ठीक है, लेट्स वाइंड इट अप हियर ओनली एंड देन विल बी स्टार्टिंग विद द हीटिंग मोडालिटीज फ्रॉम टुमारो. ओके. इसको मैं इसलिए रोक रहा हूँ बिकॉज आई नो कि थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है ये इलेक्ट्रो. ओके देन, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सर. ओके.